Hi everyone, welcome back to our channel. So we are looking at permutations and combinations questions, and we are already on the last video. So whatever questions from 2023 paper are still remaining, I'll solve this in this video, and from next video we'll start with the new topic. So let us start. The first question: ABCD is a square, one point on each of AB and CD. तो मैं यहाँ पे draw करता हूँ. So this is ABCD. Let us say ABCD. Okay. वन पॉइंट ऑन ईच ऑफ ए बी एंड सी डी. तो इसका और इसका मिडल पॉइंट लेते हैं. एंड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ईच ऑफ बी सी एंड डी ए आर चोजन. 1 2 1 2. तो ये 6 पॉइंट्स चूज किए गए. हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टाइसेस आउट ऑफ दिस 6 पॉइंट्स. तो ये 6 पॉइंट को जोड़कर एट अ टाइम 3 पॉइंट्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड इज द क्वेश्चन. So basically the question is very simple, that out of 6 points, in how many ways you can select 3 points, right? क्योंकि आप इसमें से कोई भी 3 पॉइंट अगर सिलेक्ट करोगे तो एक ट्रायंगल मिल जाएगा आपको. So we know that from 6 points to select 3 points I have to do 63, which is 6 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial, which is 4 into 5 into 6 divided by 3 into 2, which is equal to 20. Simple. So that's my answer, option number C. Okay. And obviously you know आप इसको मैन्युअली कर सकते हो, लेकिन उसमें गलती भी हो सकता है एंड टाइम भी लग सकता है. बट इफ यू कैन एक्चुअली रिफ्रेश दिस क्वेश्चन एज 63, it is very simple. Let us go to the next one. A box contains 14 black balls, 20 blue balls, 26 green balls and 28 yellow balls, 38 red balls and 54 white balls. Consider the following statements. तो एक बॉक्स में बहुत सारे अलग अलग कलर के कुछ नंबर्स वाले बॉल्स दिए गए हैं. द स्टेटमेंट्स आर: द स्मॉलेस्ट नंबर n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175. मतलब वो बॉक्स में हाथ डालकर अगर आपको कम से कम कितने बॉल निकालने पड़ेंगे ताकि किसी एक कलर का पूरा ग्रुप आपको मिल जाए. तो दैट इज द क्वेश्चन. और उन्होंने बोला है कि ऐसे जो मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स है वो 175 है. क्या ये स्टेटमेंट सही है? द सेकंड स्टेटमेंट: द स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color is 167. तो हियर द स्टेटमेंट सेज कि आपको कम से कम कितने बॉल निकालने पड़ेंगे जब आप कह सकते हो दैट दोज नंबर ऑफ बॉल्स हैव वन बॉल ऑफ ईच कलर एट लीस्ट. मतलब हर कलर का एक बॉल तो होना ही चाहिए. यहाँ पे अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स. हियर इट सेज दैट वन फुल ग्रुप ऑफ एट लीस्ट वन कलर. हियर इट सेज दैट एट लीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर. Okay, तो ये नंबर 175 और 167 are these statements true is the question. Okay, so let us look at what this problem is. So it says that we have 14 black balls, 20 blue balls, right? 26 green, 28 yellow, 38 red and 54 white. Okay. So first let us look at how many balls are there in the box. 8 and 8 16 plus 8 24 6 30 3 3 3 6 8 10 12 13 5 80 180. Okay, so there are 180 balls in the box. Now what it says is that first statement: the smallest number n such that any drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color. So what is the worst case scenario? If whatever number of balls that we are picking, only one ball of each color is left in the box, right? So here you pick 13, here you pick 19, then 25, then 27, then 37 and 53. So you may end up picking all these balls and you cannot still say that you have one full group of at least one color, right? But any next ball that you pick, it will complete at whatever that color that you pick, it will complete that group. Okay, so if you total at
total this, so there are basically 1 2 3 4 5 6 colors, so this total is 174. When you pick 175th ball, it will complete one full group of that color, whatever color that ball belongs to. I hope you are getting that point. आपको ये समझ में आता रहेगा कि एक बॉल फ्रॉम ईच कलर को छोड़ के आप बाकी सब उठा लेते हो. दैट इज द वर्स्ट केस सिनारियो कि आपका पूरा एक कलर का एक पूरा ग्रुप कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप 175th बॉल उसमें से निकालोगे तो कोई ना कोई कलर वो पूरा हो जाएगा जिस कलर का वो बॉल होगा. So the first statement is correct, 175. Okay. Now the next statement, the smallest number m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color. So at least one ball of each color, मतलब इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि एक कलर का बॉल आप पिक ही नहीं कर रहे हो, बाकी सब कलर के पिक कर रहे हो, राइट? So you have to basically exclude this 14 and pick everything rest, right? तो बाकी मतलब 180 minus 14, that is 166 balls. You pick all these 166 balls and you cannot say that कि आपने हर कलर का कम से कम एक बॉल उठा लिया है, क्योंकि आपने कोई भी ब्लैक बॉल अब तक नहीं उठाया, राइट? दीज 14 balls आर स्टिल रिमेनिंग. बट व्हेन यू पिक 167th ball, it will be necessarily a black ball, after which you can say that कि मेरे पास हर कलर का एक बॉल कम से कम आ गया. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. दैट्स वाई बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने यहाँ पे 14 ही क्यों किया? मतलब आप कम से एक छोटा सा नंबर ले सकते हो या सबसे बड़ा नंबर ले सकते हो. अगर आपने इसमें 54 बॉल छोड़ दिए, राइट, तो ये हो सकता है कि ये 54 बॉल्स 14 ब्लैक 20 ब्लू, राइट, और बचे हुए येलो भी हो सकते हैं, राइट? इसमें कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. इवन आफ्टर यू लीव एंड देन पुल द नेक्स्ट वन, इसमें से कुछ भी, मतलब ये दो पूरे ब्लॉक आ गए इसमें, राइट? आपने ब्लू और ब्लैक बॉल उठाया ही नहीं है, तो आप ये कह नहीं पाओगे कि जब आप नेक्स्ट बॉल उठाओगे तो आपने कम से कम हर कलर का एक बॉल उठा लिया है, राइट? ओनली व्हेन यू लीव 14 इन द बॉक्स, दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो. मतलब ये जरूरी नहीं है कि 14 ब्लैक ही हो, लेकिन वंस यू लीव 14 in the box and pick rest of the others and then you pick 167th ball, you can 100% say that कि मैंने कम से कम हर कलर का एक बॉल उठा ही लिया हो. The answer is both the statements are correct, which is option C. Let us go to the next one. What is the number of selections of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in a clockwise direction? So basically ये एक सर्कल है, ये सर्कल में 12 चीज़ें हैं. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो ये 12 चीज़ें हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्कल टेकन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो आप इसमें 10 चीज़ें उठा रहे हो और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उठा रहे हो, मतलब इस डायरेक्शन में उठा रहे हो. तो इसमें कितने सिलेक्शंस पॉसिबल है? तो जब आपने अगर यहाँ से शुरू किया तो यहाँ से आपने 1 2 4 5 6 7 8 9 10, राइट? तो यहाँ तक उठा लिया, दिस इज़ वन सिलेक्शन. फिर आपने यहाँ से शुरू किया, आपने यहाँ तक उठा लिया, ये दूसरा सिलेक्शन. ये यहाँ से लिया, फिर यहाँ तक लिया, ये तीसरा सिलेक्शन. फिर यहाँ से किया, फिर यहाँ तक लिया, ये चौथा सिलेक्शन. फिर यहाँ से किया, आपने यहाँ तक लिया, पांचवा सिलेक्शन. तो बेसिकली यू कैन स्टार्ट विथ ईच ऑफ दोज पॉइंट्स, राइट? और आप यहाँ से शुरू करोगे, दैट विल बी योर 12th सिलेक्शन एंड यू विल कम हियर, राइट? मतलब ये 2 पॉइंट छोड़ के यहाँ तक आप सिलेक्ट करोगे, दैट विल बी योर लास्ट सिलेक्शन, क्योंकि आपने बाकी सब कुछ अभी कर लिया, राइट? कि आप वापस वहाँ से शुरू कर रहे हो, सो इट इज़ नॉट ए यूनिक सिलेक्शन. सो बेसिकली यू विल बी एबल टू डू 12 सिलेक्शंस ऑफ 10 consecutive थिंग्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज भी बोला जाता तो फिर वापस अपने को अदर राउंड वे भी देखना पड़ता था, दैट वुड हैव बीन 24, बट हियर द आंसर इज 12. वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर्स नेमली P, Q, R, S आर 100. तो हर एक का
100 का स्कोर है मैक्सिमम। मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स आर इन इंटीजर्स, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट्स में नहीं है। स्टूडेंट कैन स्कोर 99% इन n डिफरेंट वेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो इसमें आपको 99% मार्क्स लाने हैं, मतलब 400 में से आपको 396 मार्क्स लाने हैं अक्रॉस दिस 4 सब्जेक्ट्स। ओके, सो टू कीप इट सिंपल, बेसिकली व्हाट डज इट मीन कि आपको 4 ही मार्क घटाने हैं, मतलब इसमें 4 मार्क 4 पेपर में उसके सिर्फ 4 ही मार्क जाने चाहिए, बाकी सब उसको आउट ऑफ आउट 396 मार्क्स मिलने चाहिए। तो द क्वेश्चन इज कि आप किस तरह से ये अलग अलग पेपर्स में 4 मार्क घटा सकते हो। तो मैं हर एक पेपर में 1111 घटा सकता हूँ, या फिर मैं इसमें 1120 घटा सकता हूँ, या फिर मैं इसमें 1300 घटा सकता हूँ, या फिर मैं 2 घटा सकता हूँ, या फिर मैं 4 एक ही पेपर से घटा सकता हूँ, राइट। दीज आर द डिफरेंट वेज। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये जो कॉम्बिनेशंस है, ये कॉम्बिनेशंस 4 पेपर्स में कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है उसको कैलकुलेट करना है, राइट। सो दीज आर द यूनिक वेज इन विच द मार्क्स 4 मार्क्स कैन गेट कट आउट ऑफ दिस 4 पेपर्स। नाउ आई हैव टू सी, क्योंकि ये दो यहाँ ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ और यहाँ भी कटा सकते हो, यहाँ और यहाँ भी कटा सकते हो। So how many ways in each of these row, how many ways that row is possible across these 4 papers, that we will calculate. तो ये तो 4 places 4 रिपीटेशन है, तो ये तो 1 ही आ गया। फिर यहाँ पे आई हैव टू सिलेक्ट, मतलब 4 वैल्यूज़ है मेरे पास, तो 4 फैक्टोरियल हो गया, लेकिन ये रिपीटेशन है तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पे भी मेरे पास 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि 0 रिपीटेड है। यहाँ पे 2 भी रिपीटेड है और 0 भी रिपीटेड है, तो मैं 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पे ये 1 रिपीटेड है, तो आई हैव 4 वैल्यूज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 प्लेसेस, तो 4 फैक्टोरियल, 1 इज रिपीटेड डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। हियर 4 वैल्यूज 4 प्लेसेस, so 4 फैक्टोरियल, 1 वैल्यू इज रिपीटेड 3 टाइम्स, so 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा हूँ। बस अभी मुझे इसको सॉल्व करना है और ऐड करना है। तो ये आ गया 12, ये आ गया 12, ये आ गया 6, और ये आ गया 4। तो दिस इज 12 12 24 30 35। माई आंसर ऑप्शन नंबर डी। थिंक ऑफ इट अदर वे अराउंड, राइट, कि आपको 4 मार्क ही घटाने हैं। सो देन इट बिकम्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी is the answer. Let us go to the next one. A flag has to be designed with 4 horizontal stripes using some or all of the colors red, green, yellow. में 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 1 2 3 4, और आपके पास रेड, ग्रीन और येलो कलर है। What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent stripes have the same color? बाजू बाजू के स्ट्राइप में सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास 3 कलर है, तो यहाँ पे मैं तीनों डाल सकता हूँ। वो यहाँ पे जो डालूंगा वो यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही डाल सकता हूँ। यहाँ पे जो डालूंगा वो यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे भी 2 ही डाल सकता हूँ। यहाँ पे जो डालूंगा वो यहाँ पे नहीं डाल सकता, तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। तो माय कॉम्बिनेशन सर 24। दैट्स माय आंसर, ऑप्शन नंबर सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। There are 5 persons P, Q, R, S, T, each one of whom has to be assigned one task. तो P, Q, R, S, T ये 5 लोग हैं, उनको हर एक को एक टास्क असाइन करना है। Neither P nor Q can be assigned task 1. Task 2 must be assigned to either R or S. In how many ways can the assignment can be done? तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका था 2015 में। ओके, सो लेट मी गो टू दैट स्लाइड, आपको मैं दिखाऊंगा। ये है सीसेट 2015 का क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन, देर आर 5 टास्क एंड 5 पर्सन। टास्क 1 कैन नॉट बी असाइन टू आइदर 1 और 2। टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू आइदर 3 और 4। तो यहाँ पे सिंपल ही है, मतलब वन वो सेम ही क्वेश्चन है, खाली ABPQRS यूज किया है उन्होंने वहाँ पे। अदरवाइज इट इज़ द सेम क्वेश्चन, राइट। 1 कैन नॉट बी असाइन टू 1 और 2, 2 must be assigned to 3 or 4. And how many ways this can be done? This is exactly same question with a little different terminology.
तो ये तो आपको कंपलसरी आना ही चाहिए था इफ़ यू आर गिवन 23 एग्जाम, क्योंकि ये 2015 का क्वेश्चन रिपीटेड है. ओके, लेट अस गो बैक टू आवर क्वेश्चन. यहाँ पे सिर्फ वो क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 था एंड कंडीशंस भी सेम ही है. वन, यू नो, 1 cannot be assigned to P and Q which is 1 and 2, and 2 must be assigned to R and S which is 3 and 4. बस वही क्वेश्चन है, खाली टर्मिनोलॉजी चेंज हुआ है. एनीवे वी विल सॉल्व इट अगेन. तो PQRST है, इसमें 5 टास्क है. तो कोई कंडीशंस क्या है? दैट नाइदर P नॉर Q कैन बी असाइन टास्क 1. ओके, तो यहाँ पे मैं टास्क लिखता हूँ एक्चुअली 1 2 3 4 5, और यहाँ पे P और Q नहीं आ सकता. एंड टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू R और S. तो यहाँ पे R या आ सकता है या S आ सकता है. तो अब मेरे पास क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूँ. P या Q को ये नहीं हो सकता. 2 मुझे सिर्फ R और S को ही लगाना है. तो मुझे R के साथ कितने ऑप्शन है यहाँ पे? P Q R, एक S हो सकता है या T हो सकता है. सो ये पॉसिबल है, राइट, क्योंकि P Q नहीं हो सकता. अगर मैंने Q R को असाइन किया, देन आई कैन असाइन P ओनली टू S एंड T, और आई कैन असाइन 1 ओनली टू T, राइट. तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन मेरे पास हो सकता है. अगर मैंने 2 S को असाइन किया, तो देन आई कैन असाइन दिस टू R और T, राइट. इसके अलावा मुझे 1 और 2 के असाइनमेंट के कोई भी चॉइसेस नहीं है. इसके अलावा 3 4 5 के लिए मुझे कोई कंडीशन नहीं है. तो इसके बाद जो भी बचेगा, तो यहाँ पे मेरे पास एस आर अगर चला गया तो मेरे पास बचेंगे P Q और T, राइट. यहाँ पे टी आर चला गया तो यहाँ पे मेरे पास बचेंगे P Q S. यहाँ पे मुझे बचेंगे P Q T, राइट. और यहाँ पे मेरे पास बचेंगे P Q R. So to assign these 3 tasks 3 4 and 5, I have 3 options, and these I can assign to these 3 places in any ways I want, right. इसमें कोई कंडीशन नहीं है. कंडीशन सिर्फ 1 और 2 में थी, जो मैंने सेटिस्फाई करके ये 4 ऑप्शन बना लिए. तो ये 4 ही वे है in which task 1 and 2 can be assigned. Now for each of these rows I have 3 values and 3 tasks to be assigned. So in how many ways it can be done? I know that it can be done in 6 ways. 3 places, 3 values, 6 ways. So when I have assigned 1 and 2 in this way, right, there are 6 such assignments possible or combinations possible, क्योंकि P Q T का 3 4 5 में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, that will be possible in 6 ways, correct. Similarly, here I will get 6 ways with distribution of PQS. Here I will get 6 ways with distribution of PQT, and here I will get 6 ways with distribution of PQR. So the total number of ways in which I can do this assignment is 24. That's my answer, option number D. So this was a very simple question and it was a repeat from 2015. So you must have solved it if you gave a 23 exam, क्योंकि उसमें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 100% repeated question है. Okay, that's it. So with this we have completed permutations and combinations and all PYQs. I think we did 4 videos on this. So I will either start with ratio or proportions, or I will start with mixture and allegations in the next video. So if you're not subscribed to channel, subscribe, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अभी बहुत फास्ट वीडियो लाके सारे मैथ्स के PYQs ख़त्म करने वाला हूँ. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड नोटिफिकेशन आइकन भी दबाना, सो दैट आपको इंटीमेशन मिल जाए जब भी मैं कोई नया अपलोड करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन.